Okay, let's start with the chapter 3. Chapter 3 we have already started, and the chapter is about the demand function. Okay, so in that demand function, I think we have seen the meaning of demand also. Then the law of demand we have seen, and we have seen the determinants of demand. Am I right, student? Till the determinants we have seen Yes, ma'am. everything. Yes. Now the demand function. See here the demand function what they have given. A demand function expresses the relationship between the quantity demanded of a commodity and its determinant. Okay. Taking the determinants of demand discussed above, we can represent the demand function as follows. But when generally when we are writing the law of demand, at that time we are writing the demand function also. So if you remember the demand function, can anyone tell me here? See यहाँ पे जो उन्होंने दिया हुआ है demand function, here they have taken all these determinants together. Okay, but in exam we don't need to write all these determinants together. इतना नहीं लिखना है तुम लोगों को. You need to write only one factor as a determinants of demand. What is that, student? याद करो, बताओ मुझे. डिमांड फंक्शन कैसे दिखाया जाता है? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू व्हाट विल बी द नेक्स्ट? यस, ये ऑलरेडी पढ़ा है तुम लोगों को डिमांड फंक्शन के बारे में. हाउ कुड यू फॉरगेट दैट? इक्वेशन मैंने कहा था कि इक्वेशन वी विल गोइंग टू स्टडी व्हेन वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द केस स्टडी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन. तो फंक्शन में कैसे दिखाते हैं हम लोग कि लॉ जो डिमांड रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? when we are talking about the Dr. Alfred Marshall concept or his demand function, then at that time how we are representing it? याद करो और मुझे बताओ, चलो जल्दी. कैसा था? quantity demand is equal to F and then into bracket P. Am I right? Yes, student. या तुम लोग भूल गए? हम्म, मेरा आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे यहाँ पे बार बार मैसेज, लो सिस्टम रिसोर्स में अफेक्ट योर ऑडियो क्वालिटी. माय वॉइस इज कमिंग. Yes, ma'am. तो क्यों नहीं आंसर दे रहे हो तुम लोग? भूल गए डिमांड फंक्शन? ओके, सी डिमांड फंक्शन मतलब क्या? हमें वहां पे रिलेशनशिप दिखाना है. हाउ द डिमांड इज डिपेंड अपॉन द प्राइस. तो उसको दिखाने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं? क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू एफ एंड इनटू ब्रैकेट पी. ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? यहाँ पे उन्होंने जो पी लिखा है, वाई लिखा है, पी एस लिखा है, these are all actually this all determinants. लेकिन तुम लोग मुझे बताओ, इतना डिटर्मिनेंट मतलब इससे ज्यादा भी डिटर्मिनेंट्स हो सकता है. So is it possible to write each and every point in the function now? We can also, we have to remember only one factor, that is QD is equal to F and then into bracket P. What is that indicating? That the demand will be, demand is having the functional relationship with the price. कि जैसे प्राइस चेंज होता है वैसे डिमांड चेंज होता है. यस और नो स्टूडेंट? हम्म. Yes, ma'am. Yes, Hmm. ma'am. And why only one student is saying? What about the other student? सब लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं? Okay. See, now here demand function for price. देखो ये यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा है. So actually this part we don't have to study here because this will be totally the case study form. Okay. And as I told you, the case study will going to study after like before your exam. It means like अगर वो एग्जाम है और थोड़ा अपना सिलेबस खत्म हो जाता है, फॉर 1 or 2 lectures स्पेशली वी हैव टू टेक इट फॉर द केस स्टडी. See here also you can see they have given it in the form of case study. So demand function, equation, all this point with the help of case study we will going to study later on. अभी नहीं करना है हम लोगों को. ठीक है, बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि डिमांड फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. So how do we expressing it? We are expressing it as नहीं, चलो मैंने बहुत बार बताया, अभी तुम लोग मुझे बताओ. बताओ मुझे डिमांड फंक्शन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है? चलो बोलो जल्दी से. हम्म, चलो चलो जल्दी. Who will tell me how the demand function will going to express? QD is equal Q is to, equal to F bracket P. yes, very good Umeira. ठीक है,
ओनली उमेरा विल गिव मी आंसर ना, बाकी कोई नहीं आंसर देगा. इज इट लाइक दैट? मुझे सबसे आंसर चाहिए, एक ही जन से नहीं, सब लोगों ने आंसर देने चाहिए. ठीक है, चलो अभी ये हो गया आपका डिमांड फंक्शन के बारे में. नाउ विल स्टार्ट विद द प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अभी ये जो प्राइस है, इनकम है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये सब किसके ऊपर है? ये सब जो इफेक्ट रहेगा दैट विल बी ऑल ऑन द डिमांड. कि डिमांड के ऊपर प्राइस का इफेक्ट कैसे रहेगा, इनकम का इफेक्ट रहेगा कैसे, और सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट कैसे रहेगा, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी. ये तुम लोगों को आएगा एग्जाम में. आप explain in detail the substitution effect of demand, explain in detail the price effect of demand or income effect of demand. So it will going to come. Think. Why do consumer buy more when price falls and less when prices rise? This question can be explained by further splitting up consumer behavior into income, price, and substitution effect. This is also quite simple one, but it will not be so difficult for you to understand. See, income effect. When the price of a commodity changes, it results in a change in consumer's real income or purchasing power. Okay, what is real income and purchasing power? Can anyone tell me here? चलो, I'll give you one example. आप लोग मुझे बताओ कि इसमें से रियल इनकम कौन सा है. सी योर सैलरी इज अराउंड 15,000, 15,000 का सैलरी है. एंड आप हमेशा जो सामान खरीदने के लिए मंथली जो खर्चा करते थे वो एवरी मंथ था 5,000 का. अचानक से क्या हो गया कि प्राइजेस कम, अच्छा 5,000 का तुम लोग सामान खरीदते थे और तुम्हारे पास बच जाता था 10,000 रुपीज. ओके, एंड नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा है कि अभी प्राइजेस कम हो गए कमोडिटी के, और तुम्हारे पास अभी 15,000 का ही सैलरी है, लेकिन जो सामान तुम लोग 5,000 में खरीद रहे थे, नाउ यू हैव टू पे ओनली 4,000 फॉर दैट ऑल मटेरियल. ओके, तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कितना पैसा बचेगा? टेल मी हियर. 1,000. हाउ मच? टोटली बताओ, 1,000. टोटली सेविंग कितना होगा? 15,000 का सैलरी है. पहले क्या था, 15,000 का सैलरी था, 5,000 का 5,000 का मेरा पूरा सामान खरीदने के लिए जाता था और 10,000 बचता था. 11,000. हाँ, यस, वेरी गुड. अभी कितना बचा मेरा? 11,000 बचा. ठीक है, तो मतलब 11,000 का भी है, पहले 10,000 बचता था, अभी 11,000 बचता था. तो अभी तुम लोग मुझे बताओ कि मेरे पास अभी जैसे मेरा ये प्राइजेस कम हो गए, तो मुझे सामान खरीदने के लिए मेरे पास ज्यादा पैसा है अभी? यस, डू आई हैव द मोर Yes. मनी एज कंपेयर विद द प्रीवियस वन? यस, इट इज देयर. तो वो क्या इंडिकेट करता है कि मेरा परचेसिंग पावर अभी क्या रहेगा, बढ़ेगा. है कि नहीं? पहले 5,000 में खर्चा कर देती और 10,000 सेविंग में चला जाता था. सेविंग इन द सेंस, ठीक है, बाकी चीजों के लिए मैं यूज कर सकती थी. लेकिन अभी मेरा क्या हो गया कि मैं जब मेरा पूरा जो सामान है वो 4,000 में मुझे आ रहा है, और मेरा 1,000 मतलब जो पहले वाला था उसमें, मतलब जो 5,000 था उसमें से अभी मेरा 1,000 भी बच रहा है. तो अगर मुझे पहले के हिसाब से ही जाना है, उतना ही खर्चा करना है, तो वो जो एडिशनल 1,000 अभी जो बचा हुआ है, मैं क्या करूंगी, उसका ज्यादा और कुछ सामान खरीद सकती हूँ. एम आई राइट स्टूडेंट? यस. Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, वो ma'am. सिचुएशन को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर. कि तुम्हारा परचेसिंग पावर बढ़ गया. अभी मुझे बताओ, ये परचेसिंग पावर मेरा कैसे बढ़ गया? फिर क्या हो गया था कि मेरा परचेसिंग पावर बढ़ गया? क्या इफेक्ट की वजह से? बिकॉज ऑफ? इनकम की वजह से. नहीं बेटा, इनकम के वजह से नहीं. मेरा इनकम तो पहले भी 15 था, अभी भी 15 है, लेकिन कैसे क्या मुझे ये एडिशनल मिल गया? क्यों? मैम, गुड्स की वैल्यू कम हो गई. वेरी गुड. मतलब क्या यहाँ पे कि प्राइस चेंज हो गया, प्राइस कम हो गया करके मुझे मैं अभी मतलब वहां पे मेरा परचेसिंग पावर बढ़ जाता है. और उसका ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट? अगर प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो तुम्हें उल्टा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा. तो इसके लिए तुम लोग क्या करोगे कि नहीं नहीं, इतना मतलब मोर देन 5,000 आई कैन नॉट पे, मैं उतना खर्चा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं जो मेरा एवरी टाइम का जो मेरा सामान है उसमें से मैं कुछ कम कर दूंगी. इजंट इट? तो वहां पे मैं क्या कहूंगी कि मेरा परचेसिंग पावर कम हो गया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? व्हाट इज परचेसिंग पावर? समझे आपको? Yes, ma'am.
हाँ, Yes, अभी ma'am. अभी रियल इनकम मतलब क्या, रियल इनकम के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो सैलरी इज 15,000, उसमें से क्या लगा है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनकम प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया, देन गवर्नमेंट ने कहा कि पीएफ भी कट होना चाहिए। तो नाम के लिए मेरा 15,000 सैलरी सैलरी है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डिडक्शन आई एम एबल टू गेट ओनली 14,000 इन हैंड। मतलब बोलने के लिए तो मैं 10 लोगों को बोलने के लिए बोलूंगी कि नहीं मेरा 15,000 सैलरी है, लेकिन जो एक्चुअल इनकम मेरे हाथ में आता है इट इज 14,000। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, रियल इनकम होता है। ओके, रियल इनकम मैं इसको क्यों कहती हूँ, बिकॉज थ्रू दिस इनकम ओनली विद इन दैट 14,000 ओनली आई विल गोइंग टू यूज द मनी फॉर एक्सपेंडिचर। मैं 15,000 में से नहीं तो मैं 14,000 में से खर्चा करूंगी। ओके, अगर इसी जगह पे एक सिचुएशन है, अगर इसी जगह पे गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं पीएफ कम कट करो, गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोफेशनल टैक्स कम करो, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जहाँ पे मेरे हाथ में आउट ऑफ 15,000 आई यूज टू गेट 14,000 इन हैंड, अभी मेरे हाथ में आता है 15,000 में से 14,500। तो 14,500 अभी मेरा कौन सा इनकम हो गया, इज इट रियल इनकम? Real income. यस। तो रियल इनकम मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास एक्चुअल में कितना पैसा, कितना इनकम आता है, हाथ में कितना इनकम है कि जो आप एक्सपेंडिचर कर पाओगे। बोल इवन सी आई हैव गिवन यू द वेरी स्मॉल एग्जांपल, आई विल गिव यू सम ऑफ कॉर्पोरेट एग्जांपल कि जिनका सैलरी ज्यादा रहता है। सी दे आर सेइंग कि मेरा सीटीसी, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, सीटीसी कितना है, तो मेरा सीटीसी तो ऑलमोस्ट एनुअली 8 लाख का है। ओके, अच्छा 8 लाख मतलब बहुत ज्यादा है, वेरी गुड वेरी नाइस। हाथ में कितना आता है, आई एम गेटिंग ओनली 40,000 और 45,000, देन हाउ कम इट कुड बी द 80 लाख सीटीसी। मतलब वहां पे वो लोग कैसे काउंट करते हैं कि जो इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस आपके ऊपर निकालते हैं उसका पैसा काउंट करेंगे सीटीसी में। आई एम टॉकिंग अबाउट सीटीसी, आप लोगों ने ये वर्ड अभी सुना नहीं रहेगा, लेकिन द पीपल हु आर गोइंग फॉर अ जॉब दे मस्ट बी नोइंग दिस वर्ड, व्हाट इज सीटीसी, ये वर्ड मतलब आप लोगों के सेक्टर में यूज होता रहेगा। तो सीटीसी मतलब क्या कि कंपनी के लिए आप कितना, आप कंपनी, व्हाट इज द सीटीसी फुल फॉर्म, आई रियली डोंट रिमेम्बर, बट सीटीसी का मीनिंग ये होता है कि कंपनी आपके ऊपर टोटल कितना खर्चा कर रही है। तो दिस वे उनके लिए, मतलब जैसे कि आप 8 लाख में आ चुके, तो 8 लाख में आ चुके मतलब वहां पे क्या क्या काउंट करेंगे वो लोग, मतलब पीएफ में भी जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहेगा वो भी काउंट होगा, जो इंश्योरेंस दिया जाएगा आपको वो सब काउंट होता है, जो दिवाली का बोनस दिया जाता है वो भी काउंट होगा। ओके, सो दिस एवरीथिंग दे आर काउंटिंग, बट एक्चुअल में तुम्हारे हाथ में कितना पैसा आता है खर्चा करने के लिए, वो रहता है तुम्हारा एग्जैक्ट सैलरी, दैट विल बी योर रियल इनकम। ओके, तो ये भी एक रियल इनकम है, एंड योर रियल इनकम विल आल्सो गोइंग टू affect on your purchasing power. Okay, see, when the price of commodity changes, the result is change in the consumer's real income or purchasing power. When the price of a commodity that the consumer wishes to purchase falls, the consumer immediately experiences a rise in her purchasing power and will buy more of the commodity, providing it is a normal commodity. While if the price rises, the consumer will experience decrease in purchasing power and will purchase less of the commodity. This is known as income effect. Income effect can be either positive or it can be the negative depending on the nature of the commodity. See, यहाँ पे उन्होंने इनकम इफेक्ट के बारे में कहा है कि अगर इनकम के वजह से, मतलब आपके पास जो आपका जो इनकम है, जो सैलरी है, वो अगर कम ज्यादा होता है और उसकी वजह से अगर डिमांड कम ज्यादा होता है, so that is called as your income effect on the commodity. So that can be positive also and it can be negative also. कभी कभार आप लोग बढ़ा दोगे और कभी कभार डिमांड कम करोगे। Are you able to understand so what is the income effect here? ये समझे आपको? Yes, ma'am. हाँ, अभी नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग दो कमोडिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या। सी, as the price of a commodity changes, it becomes relatively cheaper or more expensive than other commodity. If a commodity becomes relatively cheaper than other due to fall in the price,
the consumer will then have a tendency to increase the consumption of the commodity whose price has fallen and to reduce the consumption of those commodity which are relatively more expensive. क्या इंडिकेट होता है? आप लोग मुझे क्या एग्जांपल दोगे सिर्फ इसके लिए? बताओ. What will be the शुगर का मैम, example? Which one? शुगर एंड जैगरी। शुगर एंड जैगरी. ओके, शुगर एंड जैगरी. सच्ची में बताओ मुझे, आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं? आई डोंट नो, नहीं लेकिन तुम लोग भी करते रहोगे वैसा. यस, तुम लोगों ने शुगर एंड, मतलब मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए. शुगर एंड जैगरी इज आल्सो करेक्ट एग्जांपल, नॉट अ बैड. ओके, बट मुझे ये बताओ कि घर पे अगर चाय के लिए शुगर नहीं है तो कितने लोग जैगरी डाल के चाय बनाते हैं? प्लीज रेज योर हैंड, आई रियली वांटेड टू सी दैट. कि चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जैगरी वाली चाय पी लेंगे. बहुत सारा, मतलब शुगर का प्राइस तो मैम बहुत बढ़ गया. कभी कभी हो जाता है, क्या क्या? ऐसा तो कभी मैम कभी कभी यूज नहीं कर हुआ। लेते हैं. अच्छा, नहीं मैं जनरली आपको बताऊं, ऐसा कभी नहीं होता एक्चुअली. भले बोलने के लिए होता है कि नहीं, शुगर की जगह पे हम लोग जैगरी यूज कर लेते हैं. इवन हम लोग को अगर कुछ शीरा वगैरह बनाना है फिर भी नहीं, वहां पे भी शुगर ही डालेंगे. मतलब ये, दिस इज यस मैम। करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली, कि नहीं शुगर नहीं है तो जैगरी यूज करो. सबको पता है जैगरी बहुत हेल्दी होता है एज कंपेयर विद द शुगर. बट नहीं, बोलने के लिए वो सब्स्टिट्यूशन कमोडिटी है, बट इधर कुछ सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है उसके बारे में. ठीक है, तो चलो वो वाला रहने दो फिर, क्योंकि वो एकदम प्रैक्टिकली हम लोग एक्चुअली नहीं एप्लीकेबल करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं. एक एग्जांपल दे दो मुझे. चलो कोल्ड ड्रिंक के बारे में एग्जांपल दे दो. अगर एक कोल्ड ड्रिंक नहीं रहेगा तो दूसरा कोल्ड ड्रिंक भी ऑलमोस्ट सेम टेस्ट वाला है, हम लोग वो यूज कर लेंगे. व्हाट विल बी दैट? वो प्रैक्टिकली करेक्ट हो सकता है शायद से. वैसा करते रहोगे तुम लोग. चलो लेमन फ्लेवर वाले मुझे बताओ, लेमन फ्लेवर के कौन से कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं? चलो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो तुम लोग? कल ही पिया मैम अभी गोल्ड। हाँ, मैं वही सोच रही, कोई आंसर नहीं दे रहा. मतलब सब लोग इतने डिसेंट कैसे है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते? मतलब क्या बात हो गई? यस, कम ऑन. जो लेमन फ्लेवर में रहता है वो कौन से कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं? नाम बताओ उनके. कोको कोला. ना, कोको कोला थोड़ी लेमन फ्लेवर में रहता है. वो नहीं रहता मैम लेमन. आई थिंक मैं स्प्राइट ना मैम। हाँ, स्प्राइट रहता है. स्प्राइट एक रहता है. और बिग कोला में भी आता है मैम. लिम्का. विच वन? सोडा. लेमन, क्या उसका नाम, लेमोनेड करके हम लोग बोलते हैं ना, लेमोनेड. एम आई राइट? लिम्का. 7 अप। यस, लिम्का. करेक्ट 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 करेक्ट, लिम्का. 7 अप. यस, 7 अप भी ऑलमोस्ट सेम टेस्ट का रहता है. यस, वेरी गुड. आई थिंक स्प्राइट एंड 7 अप में ज्यादा कंफ्यूजन होता है. दोनों मुझे ऑलमोस्ट सेम टेस्ट के लगते हैं. ओके, सो विल टेक स्प्राइट एंड 7 अप. ठीक है, ये दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं. सपोज स्प्राइट का प्राइस बढ़ गया, मतलब आई डोंट नो अबाउट द लीटर, लीटर में कितना रहेगा करके. जनरली अभी जो भी बॉटल्स अवेलेबल है 20-20 रुपए का छोटा बॉटल अवेलेबल रहता है. एम आई करेक्ट स्टूडेंट? एम आई सेइंग द करेक्ट वैल्यू? यस. यस मैम. तुम लोग मतलब अभी लगता है बाहर नहीं निकल रहे हो, लगता है. मतलब कोई किसी को वैल्यू के बारे में पता नहीं, क्या प्राइस क्या है करके. यू पीपल आर नॉट जैसे सेइंग. पेरेंट्स लेके आते हैं ना, इसलिए पता नहीं रहता इतना. ओके ओके, ठीक है. मतलब अभी कॉलेज तो स्टार्ट होने वाला है 20 अक्टूबर से. अच्छा, तुम लोगों ने वैक्सीन वगैरह लेके रखा है क्या? क्या है सिचुएशन सब लोगों नो का? मैम. नहीं हुआ नो किसी मैम। का? एक भी नहीं हुआ यस मैम. वैक्सीन? एक एक तो हुआ रहेगा किसी का. नहीं. यस मैम, मेरा हो एक गया. हुआ है. एक हो गया. एक्चुअली मेरा भी हो गया मैम। यूनिवर्सिटी ने कहा है 3 कि स्टूडेंट्स का अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ रहेगा ना, तो शायद कॉलेज एक ऐसा कैंपस कर सकता है कि जिसके अंदर आपके वैक्सीनेशन के लिए फैसिलिटी अवेलेबल किया जाएगा. बट लेट्स सी वो कब होगा. लेकिन जब तक आप लोग वैक्सीनेशन नहीं करोगे फिर आपको कॉलेज में नहीं अलाउ किया जाएगा. तो आप लोग जल्दी से जल्दी ट्राई करो. एंड यू पीपल आर वेरी लकी, लाइक एटलीस्ट फ्रॉम योर ईयर्स दैट द कॉलेज इज गेटिंग स्टार्टेड. तो आप लोग मिस मत करो. वो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर से ज्वाइन किया था एंड उन्होंने कुछ 6-7 महीना कॉलेज किया रहेगा एंड उसके बाद में बेचारे लॉकडाउन में ही थे. तो मतलब, और सी दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस लाइफ ना, लाइक योर कॉलेज लाइफ
इज समथिंग लाइक विच इज हैविंग अ रियली गुड मेमोरी, और ये आपको है ना हमेशा मतलब लिटरली बूढ़े होने तक आपको ये सब फन, ये उसकी यादें मतलब बहुत, बिकॉज यू आर क्वाइट मैच्योर एट दिस एज। और जब हम लोग मैच्योर एज में रहते हैं उस टाइम पे जो भी हमारे साथ होता है या फिर जो भी फन एलिमेंट रहता है हम लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखते हैं, और ये एक अच्छा एक पॉजिटिव मेमोरी जैसा रहता है। सो कॉलेज लाइफ को कभी मिस नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर पे बैठे रहते हैं, भले कॉलेज में एडमिशन लेते हैं लेकिन लेक्चर्स पे नहीं आते। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये भले 3 साल का रहेगा, 3 साल का है, लेकिन दिन में बस आपको कैसे भी करके 3-4 घंटे ही निकालने हैं कॉलेज के लिए। तो उतने टाइम के लिए आओ, फ्रेंड्स बनाओ, बहुत जरूरी होता है। दैट विल कीप यू अलाइव टिल योर ओल्ड एज। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट तुम लोग, आई थिंक तुम लोगों का जूनियर कॉलेज भी ठीक से हुआ नहीं रहेगा। एम आई राइट स्टूडेंट? 11th में थे तभी तुम लोगों का लॉकडाउन चालू यस रहा मैम। है ना, तो वो भी तुम लोगों को ठीक से मिला नहीं। तो एटलीस्ट अपना डिग्री कॉलेज है, तुम लोग बड़े हायर एजुकेशन पे आ चुके स्टूडेंट अभी, तो वो मेच्योरिटी है आप में। और मेन क्या रहता है पता है, जैसे नारायण गुरु कॉलेज में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं डिग्री कॉलेज में, उनका फेस्ट रहता है। अभी पता नहीं, अभी ये कोविड के टाइम पे मतलब भले वो लोग कॉलेज स्टार्ट करें लेकिन क्या वे से एक्टिविटी होगा, बट स्टिल वी विल ट्राई टू एंगेज यू इन ऑल दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो वो सब में आप पार्टिसिपेट करोगे, आपको ये और ये सब करना ही चाहिए आप लोगों ने। तो इसके लिए ट्राई करो। और जिनका 17, हाँ जैसे कि मुझे भी लगा कि बिकॉज तुम लोगों का अभी 12 क्लियर हुआ है तो शायद तुम लोग अभी तक 18 एज के कंप्लीट नहीं रहोगे सब के सब। किसी का 17 वगैरह भी चालू रहेगा, so you may not be applicable for that, यस मैम। है ना, वैसे भी रहेगा। बट आई थिंक यही साल में आपका 18 भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब भले आप लोग 17 के रहोगे, बट फर्स्ट ईयर बीबीआई में ही आप लोग यस 18 के मैम। कंप्लीट हो जाओगे। तो तभी फिर देखना, लेकिन वैक्सीनेशन होना ही चाहिए, ऐसा मैंडेटरी यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर भेजा हुआ है। देयरफॉर आई एम सेइंग फिर भी ट्राई करना आने के लिए, बराबर अच्छे से प्रिकॉशन लेके, ठीक है। आओगे सब लोग 20 अक्टूबर को। ओके मैम। यस मैम। क्या यस डिटेलिंग मैम। रहेगा, क्या क्लासरूम रहेगा, कैसे रूल्स रहेगा, मंडे को एक मीटिंग है तो उसमें हम लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। तो मैं तभी आप लोगों को गाइड कर दूंगी कि कैसे करना है, ग्रुप में ही बता दूंगी मैं आप लोगों को कि कैसे क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आना है करके, ठीक है। बट इट्स अ गुड थिंग दैट एटलीस्ट इट इज स्टार्टिंग। एंड ये बात तो सही है, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों का एमसीक्यू नहीं रहेगा ना, यू पीपल हैव टू गिव द थियरी एग्जाम, ठीक है। तो प्रिपेयर रहना उसके लिए, पढ़ने के लिए अभी स्टार्ट यस मैम। कर। मैम। बहुत 2 साल आराम कर दिया, बहुत 2 साल तुम लोग ऐसे फ्री में पास होते रहे, अभी मेहनत करो और पास हो जाओ, बराबर है ना? मैम। हाँ बोलो। यस मैम। मैम। हाँ मुस्कान। मैम अभी मैं टेक्स्ट बुक ले लूँ ना मैम? नहीं रुक जा ना, पहले देखते ना कॉलेज में आके टीचर्स लोग क्या बोल रहे हैं करके। रुक जा, अभी घाई मत करो, रुको, ठीक है। अगर टीचर्स लोग वहां पे तुम लोगों को नोट्स दे रहे हैं जेरोक्स निकाल के वगैरह, आई मीन बिकॉज टेक्स्ट बुक अगर मतलब खरीद क्यों रहे, लाइब्रेरी से क्यों नहीं ट्राई करोगे? लाइब्रेरी से भी लिया लाइब्रेरी करो ना, कार्ड। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, मैम रुको मेरे तुम पास लोग। कुछ भी नहीं है तो मुझे समझता नहीं है मैम। नहीं रुको रुको मुस्कान, क्या करो बता, 20 अक्टूबर तक वेट करो। 20-21 तक अगर लाइब्रेरी वाले भी कुछ वहाँ पे स्कीम निकाल देते हैं, कुछ रहता है अगर, तो वो आप वहां से खरीदो। लेकिन अगर मेरा मेरा मेन कंसर्न नहीं है, इफ यू वांट टू बाय टेक्स्ट बुक नॉट अ बैड आइडिया, यू कैन बाय इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, सेल्फ मतलब जनरली तुम लोगों को है ना हर सेमेस्टर में बुक्स खरीदने पड़ते हैं स्टूडेंट, तो बहुत ज्यादा खर्चा आपका फीस है, देन अगेन इतना खर्चा भी करना है बुक्स के ऊपर, तो मुझे वो टेंशन होता है कि नहीं इतना खर्चा क्यों करेंगे बच्चे लोग करके, ठीक है। अगर आपको नहीं बिल्कुल भी कंफर्टेबल है विद द जेरोक्स ऑल्सो, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, देन सेकेंड हैंड वाला ट्राई करो। अभी कुछ सिलेबस वगैरह चेंज नहीं हुआ है तुम लोगों का, तो आप लोग सेकेंड हैंड भी ट्राई करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नया बुक मत खरीदो, एकदम नया पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा, वैसे वाला बुक मत खरीदो। यस मैम। अभी मैं आपको अगर पिछले साल वाले स्टूडेंट का कांटेक्ट देती तो, लेकिन इवन पिछले साल भी हम लोगों ने किसी को मैंडेटरी नहीं किया था कि लाइक यू पीपल हैव टू बाय टेक्स्ट बुक एंड ऑल, तो उनके पास भी नहीं रहेगा। अदरवाइज मैं खुद ही उनसे बोलती कि अभी के फर्स्ट ईयर के बच्चों को दे दो करके कम प्राइस में, बट वैसा नहीं होगा अभी। मुस्कान, अगर तुम्हें बहुत इशू है ना बेटा, आप खरीद लो, लेकिन सेकेंड हैंड वगैरह खरीदो, कोई नया मत खरीदते बैठो, इतना पैसा मत खर्च करो।
ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं भले अपना कॉलेज स्टार्ट होगा फिर भी मैं नोट्स दे दूंगी आपको जेरॉक्स निकालने के लिए, कितना पढ़ना है क्या करना है उतना ही उसके हिसाब से। बट अगर नहीं आपको तब तक कंफर्टेबल है देन गो अहेड विद द टेक्स्ट बुक, एटलीस्ट फॉर द स्टूडेंट दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन मटेरियल, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सो मुस्कान यू कैन गो अहेड, बट सी कि तुम ज्यादा पैसा नहीं खर्च करोगे और सेकंड हैंड बुक खरीदोगे। ओके मुस्कान, विल यू डू दैट? ओके मैम। Muskan don't want यस to say मैम। anything. Okay, okay, चलो। See now it shows less than 10 minutes। हम लोग को देखना है अभी। हाँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया 7 अप एंड देन अगेन द स्प्राइट। अगर स्प्राइट का प्राइस बढ़ जाता है सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द 7 अप, मैं 7 अप ज्यादा प्रेफर करूंगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसके ऊपर नेगेटिव हो गया? स्प्राइट के ऊपर नेगेटिव हो गया या फिर 7 अप के ऊपर नेगेटिव हो गया? बोलो। स्प्राइट का प्राइस बढ़ गया, इसके लिए मैंने 7 अप खरीदा। तो अभी तुम लोग मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसके ऊपर नेगेटिव है? स्प्राइट के कमोडिटी ऊपर है या 7 अप के ऊपर? Sprite. ना। Yes, very good. ठीक है, so this is what the way like the substitution effect will going to have the positive or the negative impact on the commodity. Now the next one here, price effect. Price, अच्छा मतलब प्राइस कम ज्यादा होता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट होता है? See, the combined effect of the income and the substitution effect is known as the price effect. It explains the inverse relationship between price of a commodity and its demand. The price effect is graphically represented by the demand curve that we have already seen। कि जब हम लोग डिमांड के बारे में बात करते हैं कि प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप बताते हैं, सो दैट वी कैन शो विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल आल्सो एंड इवन विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व आल्सो। लेकिन उन्होंने कहा है कि प्राइस इफेक्ट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर इनकम इफेक्ट प्लस द substitution effect। Okay, though in case of normal good price effect is positive, that is a fall in price will result in a rise in demand, not all good display this price demand relationship। On the basis of income effect we can classify the commodities into the following category। उन्होंने कहा है कि प्राइस हमेशा कम ज्यादा होता है तो उससे डिमांड भी कम ज्यादा होता है, लेकिन किसी किसी कमोडिटी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो उन्होंने उसके बेसिस के ऊपर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इफेक्ट उन्होंने 3 कैटेगरी में गुड्स को क्लासिफाई किया है। वन इज द नॉर्मल गुड, देन इंफीरियर गुड एंड देन गिफेन गुड्स। ओके, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा कि व्हाट इज नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड, बट मैं फिर भी एक बार पढ़ा समझा देती हूँ आप लोगों को। सी, अभी नॉर्मल गुड्स के बारे में, दिस गुड हैव पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, दैट इज कंज्यूमर परचेस मोर ऑफ दिस कमोडिटी as their real income rise and less of them when their real income fall. These commodities have positive substitution effect. Therefore, the combined positive income effect and the positive substitution effect result in positive price effect. That is, as price of these commodities fall, their demand rises, and as price rises, their demand falls. These commodities have middle to high price range and are considered to be superior by consumer। मतलब ये किनको नॉर्मल कमोडिटी उन्होंने कहा है? नॉर्मल कमोडिटी इन चीजों के लिए कहा है कि जो ज्यादा लो क्वालिटी के नहीं रहते हैं और ना ही ज्यादा हायर क्वालिटी के रहेंगे। जो मतलब ऐसा रहेगा कि नो दे आर एट द गुड क्वालिटी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम सुपर क्वालिटी वाला चीज इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे जैसे कि जैसे हम लोगों के जैसे लोग हैं तो वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, ज्यादा हाई क्वालिटी के पीछे नहीं जाएंगे बिकॉज उतना खर्चा हम लोग नहीं कर पाते हैं। बट हम लोग एकदम लोएस्ट क्वालिटी के ऊपर भी नहीं जाएंगे कि कम से लो क्वालिटी वाला एकदम खरीद लो करके और वो यूज करो, वैसा भी हम लोग नहीं करते। जो ठीक है मतलब पेन, इफ यू टॉक अबाउट द क्लोथ, तो जो पहनने लायक है थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी है तो उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं। ठीक है, और वो जो प्राइस हमारे लिए अफोर्डेबल है ऑन दैट बेसिस तो उसको कहा जाता है नॉर्मल गुड। और इसके ऊपर प्राइस इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इट विल गोइंग टू हैव द प्राइस इफेक्ट एंड दैट विल बी इन अ पॉजिटिव ओनली। ये पॉजिटिव में ही होता है कि अगर इसका प्राइस कम होता है तो हम लोग उसका डिमांड करते ही है। ओके, इसका डिमांड कम नहीं होता है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द इंफीरियर गुड। तो नॉर्मल गुड आप लोगों को क्या समझा कि प्राइस का इफेक्ट यहाँ पे इसके ऊपर होता है एंड अगर इसके प्राइस कम होता है तो लोग थोड़ा कम खरीदेंगे और अगर इसका प्राइस ज्यादा होता है तो लोग ज्यादा सॉरी प्राइस अगर कम होता है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे और प्राइस ज्यादा होता है तो लोग थोड़ा कम खरीदेंगे। अगर ये सिचुएशन किसी कमोडिटी के ऊपर अप्लाई होता है सो दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल गुड। अभी इंफीरियर गुड्स के लिए क्या रहता है डिमांड का एंड प्राइस का रिलेशन?
These commodities have negative income effect. As consumers' real income rises, they tend to buy less of this commodity and switch over to other superior commodity. However, the substitution effect on a demand for inferior commodity is positive and larger than the negative income effect. The price effect, which is the net result of negative income effect and the positive substitution effect, is positive. A price of this commodity fall, consumer buy more of them and vice versa. यहाँ पे भी इंफीरियर गुड में भी क्या होता है कि इट विल गोइंग टू हैव द नेगेटिव इनकम इफेक्ट हियर. नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब यहाँ पे जो कमोडिटी रहेगा ना स्टूडेंट, वो एकदम सुपीरियर वाला नहीं रहेगा, ऐसा उनका कहना है. लेकिन अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है, so the consumer will going to increase, the consumer will going to demand more of this commodity. ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है कि अगर कंज्यूमर का इनकम ज्यादा होता है तो कंज्यूमर ये कमोडिटी को ज्यादा डिमांड करेगा. सो उसका इफेक्ट पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, प्राइस का इफेक्ट. नेक्स्ट है गिफेन गुड्स का. दिस आर द स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड. ये गिफेन गुड का है ना, दोनों केस से बहुत अलग है, नॉर्मल गुड से और इंफीरियर गुड से बहुत अलग है. These are the special type of inferior goods named after Sir Robert Giffen. According to Alfred Marshall, Sir Robert Giffen observed the consumption pattern of the very poor in the mid-19th century Ireland and found that some inferior goods like poor quality potatoes and the bread had strong negative income effect. When the price of these goods rose, it reduced the real income of the poor to such an extent that they could not afford any superior goods and had to cut down the consumption of more superior goods. Consumers then use their income to buy more of the inferior goods in order to meet their consumption needs. Thus, as the price of the inferior goods rose, consumers bought more of them, and as their prices fell, they bought less of them. Though the given goods have positive substitution effect, the negative income effect is stronger and therefore the result of price effect is negative. देखो यहाँ पे गिफिन गुड मतलब क्या है कि इंफीरियर गुड जो रहता है उससे भी लोएस्ट क्वालिटी का रहता है गिफिन गुड. ठीक है, नॉर्मल गुड मतलब हाँ थोड़ा ठीक क्वालिटी, मतलब जो सुपीरियर क्वालिटी है उससे थोड़ा नीचे. इंफीरियर गुड मतलब दिस विल बी लिटिल मिडल वन, कि मतलब ये मतलब अफोर्ड करना चाहिए, ऐसा वाला. गिफिन गुड मतलब क्या रहता है, ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी वाला कमोडिटी रहता है. तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि पुअर लोगों का पैटर्न आल्फ्रेड मार्शल ने ऑब्जर्व किया था और उन्होंने ये देखा था कि जो गरीब लोग हैं उनका जब ये जो गिफेन गुड्स है इनका अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि गरीब लोग उस टाइम पे ज्यादा खरीदते गिफेन गुड्स को. तो क्यों गिफेन गुड्स को ज्यादा खरीदते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली उनका ऐसा कहना है कि जितना ज्यादा प्राइस देंगे उसके हिसाब से उसका क्वालिटी भी ठीक रहेगा करके. तो गिफिन गिफ्ट का उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे इंफीरियर एंड गिफिन गुड दे आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम ओनली, लेकिन रॉबर्ट गिफिन सॉरी अल्फ्रेड मार्शल ने उसको और ज्यादा तरीके से मतलब व्हाट वी कैन से थोड़ा डिफरेंट वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. मैं इसका आपको विद एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में एकदम ठीक से बता दूंगी. नाउ इट शोज लेस देन 1 minute. टिल दैट टाइम कुसुम प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस. यस कुसुम, कैन यू? यस मैम. हाँ. यस और मैम. 18 को पता नहीं मेरा लेक्चर है या नहीं, लेकिन मैं आपको 19 को बराबर से एक्सप्लेन कर दूंगी कि कॉलेज में क्या क्या फॉर्मेलिटीज के लिए क्या क्या करके आपको तैयारी